Hello everyone, I am Neha Malu and in this video lecture, I'll be discussing about the legal framework around Insolvency and Bankruptcy Code 2016. But before we begin, let's first understand the purpose, which is to provide for resolution from a state where the assets are not sufficient to meet the debts and which leads to some default on the part of the debtor. Our discussion, however, today will be only against corporate debtor and not all the debtors as a whole. So what happens is whenever a corporate debtor means corporate plus debtor. Debtor means someone who owes money and corporate means a corporate body. Okay. So whenever a corporate debtor makes a default of rupees 1 crore or above, then in that case, a corporate insolvency resolution process, CIRP, can be initiated against the same corporate debtor. Next comes the question as to who can initiate the CIRP process. So there are three sections under which CIRP proceedings can be initiated against a corporate debtor, which are section 7, 9 and 10. Section 7 talks about initiation of CIRP proceedings by financial creditor, section 9 by operational creditor and section 10 by corporate debtor itself. Okay. So who are these financial creditor and operational creditor? Financial creditor means someone from whom the corporate debtor has borrowed money and now corporate debtor has an obligation to pay off this particular creditor. Like for example, banks. So companies do borrow money from banks, right? So companies has the obligation to pay off the banks. So now in that case, bank becomes a financial creditor. Next comes who is the operational creditor. Operational creditor means the creditors who are whose dues are towards the operational debts. So, for example, in the regular day-to-day operations of the company, they do buy raw materials and stuffs from their suppliers. So, if the payment of the suppliers remains outstanding, then the suppliers amount to operational creditors. Okay. Now, the term financial creditor and operational creditor also includes the assignees. What does it mean? Say a financial creditor has assigned its debt to someone, or the operational creditor has assigned its debt to someone. Then this someone to whom the debt has been given steps into the shoes of the creditors and take their place for the purpose of initiating CIRP process. कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक ने लोन दिया था कंपनी को, नाउ बैंक ने ये लोन किसी को असाइन कर दिया दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर, आप जाइए और रिकवरी कर लीजिए. सो देर आर सम रिकवरी प्रोफेशनल्स, इसको हम लोग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी बोलते हैं. उनका स्पेशलाइजेशन होता है ऐसे लोन्स को रिकवर करना. सो बैंक्स बहुत बार ऐसा करती है कि जब भी बहुत ज्यादा लोन्स हो जाता है विच आर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, देन इन दैट केस bank assigns this loan to the asset reconstruction companies. Now this asset reconstruction company steps into the shoes of the bank and becomes a financial creditor. ऑपरेशनल क्रेडिटर भी मैंने जैसा बताया अभी कि जैसे सप्लायर्स वगैरह है जिनका ड्यूज हो गया है बिकॉज ऑफ इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी and the amount of default is 1 crore or above, then these operational creditors can also file CIRP application against the corporate debt. The process of filing of CIRP application by financial creditor and corporate debtor is little different. फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में क्या होता है, अगर डिफॉल्ट हुआ तो फाइनेंशियल क्रेडिटर डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन एनसीएलटी को फाइल कर सकता है. एनसीएलटी इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स. सो अगर डिफॉल्ट हुआ तो फाइनेंशियल क्रेडिटर डायरेक्टली एप्लीकेशन फाइल कर देंगे सीआईआरपी का एनसीएलटी के सामने. लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे है कि एप्लीकेशन फाइल करने से पहले उनको एक डिमांड नोटिस देना पड़ेगा कॉर्पोरेट डेटर को. कॉर्पोरेट डेटर को 10 दिन का समय देना पड़ेगा डिमांड नोटिस में कि आप हमारा पैसा वापस दीजिए, या तो आप बताइए कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे, मतलब इज देयर एनी डिस्प्यूट इन बिटवीन. सो दो सिनेरियोस हो सकता है. ऑपरेशनल क्रेडिटर ने 10 डेज का जब डिमांड नोटिस दिया तो दो सिनेरियो हो सकता है. सिनेरियो नंबर 1, कॉर्पोरेट डेटर ऑपरेशनल क्रेडिटर को पैसे दे दे. सिनेरियो नंबर 2, कॉर्पोरेट डेटर बोले कि आपने जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया था उसका क्वालिटी वाज वेरी बैड, दैट इज व्हाई वी हैव होल्ड योर पेमेंट, और से देयर इज सम डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन हमने आपको पैसे नहीं दिए. तो इन दो केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर आगे जाके एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है. अगर 10 दिन का समय जो कॉर्पोरेट डेटर को दिया जा रहा है बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर,
उस 10 दिन के समय में ना तो पेमेंट किया ना ही डिस्प्यूट रेज किया, तब ऑपरेशनल क्रेडिटर जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब तुम पूछोगे कि मैम फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? सो फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट। आई मीन, क्यों नहीं है डिस्प्यूट? क्योंकि मैंने पैसे दिए, तुमने पैसे लिए, इसमें डिस्प्यूट क्या हो सकता है? मैंने पैसे दिए, वो पैसे की क्वालिटी खराब था, ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट? So what I'm trying to say is कि financial creditor who files a CRP application under Section 7 can file the application straight away whenever there is a default on the part of the corporate debtor and the amount is of rupees 1 crore or above. ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में फर्स्ट दे हैव टू गिव अ डिमांड नोटिस, 10 दिन का समय देना पड़ता है। 10 दिन में इफ द कॉर्पोरेट डेटर पेज बैक और सेज दैट देयर इज सम डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ व्हिच द पेमेंट वाज केप्ट ऑन होल्ड, देन इन दैट केस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कैन नॉट फाइल द एप्लीकेशन। बट इफ ऐसा दोनों नहीं होता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सीआरपी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कॉर्पोरेटर के अगेंस्ट, राइट? कॉर्पोरेटर इटसेल्फ कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10। मतलब अगर कॉर्पोरेट डेटर ने किसी का भी पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया और अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, किसी और ने फाइल नहीं किया, कॉर्पोरेटर खुद ही एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्यों कोई कॉर्पोरेट डेटर ऐसी एक सीआरपी एप्लीकेशन फाइल कर देगा अपने अगेंस्ट। सो उसका भी एक जस्टिफिकेशन है, उसका भी एक रीजन है। तो होता क्या है, जब भी कोई सीआरपी एप्लीकेशन एनसीएलटी एडमिट करती है तो मोराटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस मोराटोरियम पीरियड? मोराटोरियम पीरियड मींस अ पीरियड ऑफ काम whenever during which, so just a second, yes, so moratorium impose हो जाता है, मतलब उस टाइम पे there can be no recovery that can be done from the corporate debtor. Corporate debtor एकदम उस टाइम पे moratorium period में there is no one who can initiate any legal actions against the corporate debtor, nor can someone come and take back the assets of the corporate debtor. मतलब period of calm. अब ये ऐसा करना जरूरी क्यों है? अगर सीआरपी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी मोरेटोरियम इम्पोज नहीं होता है, तब सब लोग आके अपना अपना एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कोई कॉर्पोरेट के एसेट्स ले जाएगा, राइट? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सीआईआरपी का पर्पस क्या है? टू ब्रिंग द कंपनी आउट ऑफ द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और टू ब्रिंग द कंपनी आउट ऑफ द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी बाकी सारे चीजों पर स्टे लग जाता है। कोई अगर पेंडिंग केसेस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट तो वो केसेस पे भी थोड़े टाइम के लिए स्टे लग जाता है। जब तक मोरेटोरियम इज देयर तब तक नो वन कैन इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग्स, नॉर कैन द केसेस व्हिच आर ऑलरेडी गोइंग ऑन can continue against the corporate debtor. Okay. अभी law has prescribed certain timelines. Certain timelines मतलब क्या? जैसे ही CIRP application फाइल हुआ NCLT के पास, NCLT has 14 days time to either admit or dispose of the application. Admit कर लिया तो well and good, आगे CIRP proceedings बढ़ जाएगा। लेकिन अगर dismiss किया तो dismiss करने से पहले जिसने भी एप्लीकेशन फाइल किया मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेटर, उनको 7 days का टाइम दिया जाएगा टू रेक्टिफाई द एरर बिकॉज ऑफ विच द एप्लीकेशन इज गेटिंग डिसमिस्ड। अगर वो 7 दिन में ये डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर देते हैं तब सीआरपी एप्लीकेशन एनसीएलटी एडमिट कर लेती है। Now this timeline of 14 days and 7 days which I just mentioned are not mandatory timeline, they are the directory timeline. मतलब लॉ में ऐसा बताया है कि 14 दिन में एडमिट करना, अगर कुछ डिफेक्ट है तो 7 दिन में रेक्टिफाई करना, बट ऐसा नहीं कि अगर 7 दिन बीत गया तो देयर इज नो आई मीन अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्डोनेशन of delay or anything as such is given, right? So I hope till the time the application is filed, so default has occurred, an application is filed, the application is admitted, यहाँ तक का प्रोसेस आई थिंक सबको क्लियर होगा। एडमिशन के बाद क्या होता है? मोरेटोरियम इज इम्पोज्ड एज आई मेंशन and an interim resolution professional, IRP, interim resolution professional is appointed. समझते धीरे धीरे होता क्या है। कंपनी ने डिफॉल्ट किया मतलब कंपनी के मैनेजमेंट के एंड से कुछ गड़बड़ रहा होगा। सो जैसे ही सीआरपी एप्लीकेशन एडमिट होता है कंपनी का मैनेजमेंट सस्पेंड हो जाता है, तो कंपनी का डे टू डे अफेयर संभालने का काम किसको दे दिया जाता है? IRP, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसका काम है टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी and to continue the company as a going concern. तो मतलब क्या हुआ? जैसे ही सीआरपी एप्लीकेशन एडमिट हुआ वैसे ही मोरेटोरियम इंपोज हो गया और एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP अपॉइंट हुआ।
IRP टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब अभी कंपनी को गोइंग कंसर्न रखने का काम कौन इंश्योर करेगा? IRP इंश्योर करेगा. And right after the appointment, a public notice is also issued by way of advertisement in newspaper and putting the same on website for the purpose of inviting claims of other creditors. तो होता क्या है कि जनरली एक दो क्रेडिटर या कॉर्पोरेटर खुद अपना सीआरपी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, लेकिन एक कंपनी के तो कितने सारे क्रेडिटर्स होंगे, राइट? एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर रेजोल्यूशन, देन वी विल हैव टू हियर ऑल द क्रेडिटर्स. सबका क्लेम समझना पड़ेगा, किसका क्या क्लेम है, नहीं है. Therefore, a public announcement is done for the purpose of inviting claims from all the creditors. ये सारा काम होता है interim resolution professional का. And within certain number of days, a COC, committee of creditors, is required to be formed. Right? मतलब क्या हुआ? IRP अपॉइंट हुआ. IRP अपॉइंट होने के बाद पब्लिक अनाउंसमेंट किया. अभी मोरेटोरियम चल रहा है, ठीक है. पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद सारे क्रेडिटर्स का क्लेम इनवाइट किया. अभी क्रेडिटर्स का क्लेम इनवाइट करने के बाद एक कमेटी फॉर्म हुआ, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. अब जो भी सीआरपी से रिलेटेड डिसीजंस होएगा, वो सारा डिसीजन सीओसी की रजामंदी से लिया जाएगा, ठीक है. जैसे नॉर्मली कंपनीज में जो डिसीजंस होता है वो मेंबर्स या बोर्ड लेती है, लेकिन आफ्टर सीआरपी इज इनिशिएटेड तब उसका डिसीजन पावर किसके पास चला जाता है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास. अभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, मैम ये आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है? सो दिस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज एन इंडिविजुअल. जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर खुद अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो वो अपने एप्लीकेशन में एक आईआरपी का नाम भी प्रपोज करते हैं. मतलब वी विश टू अपॉइंट मिस्टर सो एंड सो एज द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. मैं अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं बोल रहा. सो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में क्या होता है? दे कैन गिव द नेम और मे नॉट गिव द नेम, जैसा भी उनको सही लगे. अगर उनके मन में कोई नाम है कि इसको हम लोग आईआरपी अपॉइंट करवा सकते हैं, देन दे मे मेंशन द नेम. इट इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं बताते हैं तो एनसीएलटी खुद आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की मदद से उनको 10 डेज का नोटिस देते हैं कि आप एक आईआरपी बताइए इस कंपनी के लिए. एंड द नेम दे सजेस्ट दैट पर्सन इज अपॉइंटेड एज द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, प्रोवाइडेड इस पर्सन के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है. आफ्टर द सीओसी इज फॉर्म्ड, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज फॉर्म्ड, दे अपॉइंट अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल खाली तब तक ही अपॉइंटेड होता है जब तक सीओसी नहीं फॉर्म हो जाता. जैसे सीओसी फॉर्म हो जाता है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, तब आईआरपी का रोल इज सीज टू एग्जिस्ट. अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम तो सिर्फ उस क्रेडिटर ने या कॉर्पोरेटर ने खुद बताया है जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन देयर आर अदर क्रेडिटर्स एज वेल. तो सबका approval is mandatory for the purpose of, because resolution professional is a big person who will be continuing the process, who will be taking who will be trying to take the company out of the state of insolvency. Therefore resolution professional का appointment पूरे COC मिलकर करती है with a vote of 66%. अगर किसी पर्सन को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना है तो उसके लिए 66% ऑफ मेजॉरिटी, आई मीन 66% वोट्स इन फेवर चाहिए ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. यहां तक समझने के बाद एक बार हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं टू अंडरस्टैंड a little more about the from the background part of the CIP proceedings. So law says that this corporate insolvency resolution process cannot continue forever. Cannot continue forever means law has provided a timeline of 180 days. So once the CRP application is admitted by the NCLT, this clock of 180 days begins. जो सीआरपी प्रोसीडिंग्स है उसको 180 डेज में कंप्लीट करना पड़ता है. अगर 180 डेज में कंप्लीट नहीं करते हैं, देन द कंपनी इज पुश्ड इनटू लिक्विडेशन. हाउएवर देयर इज अ स्कोप फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम. मतलब अगर 180 डेज में नहीं कर पाए तो हम लोग एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर एक्सटेंडिंग द टाइमलाइन. कितने टाइम के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है हमको? वी कैन गेट एक्सटेंशन ऑफ एटमोस्ट 90 डेज. मतलब सिर्फ एक एक्सटेंशन मिल सकता है और 90 डेज का. I'll repeat once again. After the CRP application is admitted, a timeline of 180 days is given for the purpose of resolution of the company. अगर 180 days में resolution नहीं हो रहा है तो एक बार, सिर्फ एक बार हम लोग extension के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमको सिर्फ एक बार ही extension मिल सकता है. मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने डेज का? 90 डेज का, राइट? सो 180 डेज प्लस 90 डेज, सो 270 डेज. लॉ सेज ये 270 डेज तो फिक्स है.
लेकिन अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या कहीं पर एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, देन इन दैट केस additional टाइम भी दिया जाता है, बट at most CRB proceedings cannot continue beyond 330 days. I'll repeat once again, 180 days plus 90 days and at most 330 days. 330 दिन के बाहर CRB proceedings चल नहीं सकता. अगर कंपनी का रेजोल्यूशन नहीं हो पाया विद इन दिस टाइम फ्रेम, देन द कंपनी इज पुश्ड इनटू लिक्विडेशन. मतलब इस कंपनी का अब कुछ नहीं हो सकता है, इसको लिक्विडेट करो. ओके, राइट. तो अभी तक हमने कहाँ तक समझा? हमने अभी तक समझा कि सीआरपी एप्लीकेशन फाइल हुआ, एप्लीकेशन एडमिट हुआ, एप्लीकेशन एडमिट होते ही घड़ी चालू हो गया 180 डेज प्लस 90 डेज एंड एट मोस्ट 330 डेज. इस बीच जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसने पब्लिक नोटिस इशू किया बाय वे ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पुटिंग ऑन द वेबसाइट फॉर इनवाइटिंग द क्लेम्स. क्लेम्स इनवाइट होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म करना पड़ता है. जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है वो सारा का सारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के हिसाब से होता है. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपनी फर्स्ट मीटिंग में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी को अपॉइंट करते हैं हु कंटिन्यूज द सीआरपी प्रोसीडिंग्स. अब ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होता है इसका कॉम्पोजिशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में खाली वही क्रेडिटर्स शामिल हो सकते हैं जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अलावा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में आ नहीं सकते. मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने भी अगर सीआरपी एप्लीकेशन फाइल किया तभी भी वो सीओसी के मेंबर्स नहीं बन सकते. अगर वो सीओसी के मेंबर्स नहीं बन सकते मतलब दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी ऑफ द कॉर्पोरेटर इटसेल्फ. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर ओनली देयर इन सीओसी. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं है. तो फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास मोटिवेशन क्या हुआ सीआरपी एप्लीकेशन फाइल करने का? मोटिवेशन ये हुआ कि कम से कम अगर कंपनी जब रिजॉल्व होगी तो मेरा पैसा तो निकलेगा, जो पैसा भी फंसा हुआ है कम से कम वो पैसा तो बाहर आएगा. So that is the motivation by why operational creditors can also file CRP application, but they did not get any voting rights or anything in the meetings of the committee of creditors, because committee of creditors consists of only financial creditor. और वो भी वही फाइनेंशियल क्रेडिटर जो मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं है. मेरे मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर है उसके रिलेटेड पार्टी नहीं है. रिलेटेड पार्टी को कॉर्पोरेट आई मीन सीओसी से बाहर रखने का, कमिटी ऑफ क्रेडिटर से बाहर रखने का क्या मोटिव हो सकता है? क्योंकि रिलेटेड पार्टी है तो वो बायस्ड हो जाएंगे, वो बायस्ड डिसीजन मेकिंग लेंगे. इसलिए जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, उसमें रिलेटेड पार्टीज को भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं है बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सीओसी. ठीक है. अब now a question may arise, ma'am, what if there are no financial creditors or if all the financial creditors are related parties? तो उसके लिए भी लॉ ने बताया है कि अगर ऐसा कोई सिनारियो होता है कि सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मेरे रिलेटेड पार्टी है या फिर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, तब जो टॉप 18 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है वो सीओसी के पार्ट बनते हैं. लेकिन अगर 18 से कम है तो जितने भी है 13 14 जो भी है वो सीओसी के पार्ट बनते हैं. इन 18 के अलावा वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन ऑफ द कंपनी, ये भी सीओसी में सीओसी के पार्ट बनते हैं. मतलब if there is no financial creditor or if all the financial creditors are my related party, then in that case top 18 operational creditors, one representative of employees and one representative of workmen, these 20 people they form the committee of creditors COC, and फिर ये सारे decision making लेते हैं. इस सिनारियो में even operational creditor gets the voting rights. Okay. अभी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म हो गया. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म होने के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी को अपॉइंट किया विद 66% अप्रूवल. अब ये आरपी क्या करता है? आरपी गिव्स एन इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हो? दिस कंपनी इज इनटू द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये अपने डेट्स नहीं पे ऑफ कर पा रही है. अगर कोई बाहर वाला आए और कुछ पैसे इन्फ्यूज करे यहाँ पे और बदले में ये कंपनी का स्टेक ले ले और इस कंपनी को अगर लिक्विडेशन में जाने से मतलब मरने जाने से बचा ले, तो ये वाला जो पर्सन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. ओके. रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मतलब क्या हुआ? एक कंपनी है जो बहुत ऐसे इंसॉल्वेंसी वाले स्टेट में जिसके अगेंस्ट सीआरपी एप्लीकेशन फाइल हो चुका है. इस कंपनी को बचाने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी invites expression of interest from the resolution applicants
who can infuse some money and take control of this particular entity for the purpose of saving the company from the state of insolvency. ठीक है, अभी कोई भी बाहर से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्यों देगा, पहले तो उसको समझना पड़ेगा ना कि इस कंपनी में कुछ है या नहीं है. हो सकता है आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, से फॉर एग्जांपल आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई एम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी. मैंने किस कंपनी में थोड़े से पैसे इन्फ्यूज किए, उसको इंसॉल्वेंसी के स्टेट से बाहर निकाल लिया, अब ये कंपनी आउट परफॉर्म करने लग गई, तब तो मेरे को बेनिफिट है ना. एंड देयर आर रियली शार्पर हेयर कट्स, मतलब 100 200 करोड़ के लोन्स के बदले में 30 करोड़ 40 करोड़ ऐसा ही देते थे. ठीक है, तो देयर आर रियली शार्पर हेयर कट्स, बट द थिंग इज कि आई गेट समथिंग, मतलब मेरे को बहुत सस्ते में कुछ मिल गया, मैं उसको बेटर करके I can get a lot of money out of that particular company. So this is the motivation. Also, I get the benefit of set off and carry forward of losses, and there are many accounting and taxation benefit that I can avail by way of acquiring this particular company. जो बड़े बड़े resolution applicants होते हैं ना, they have a very strategic, I mean, way how they kind of purchase, basically how they, why they give resolution plans for the purpose of resolving these companies which are into CIRP for the purpose of their own benefit. Okay, but this, for the purpose of giving expression of interest, first I need to know now what is there inside this company, correct? So resolution professional, they prepares a document which is termed as information memorandum. I'm using a lot of technical terms over here, so I'll repeat once again after I'm done with the significant portion. So they prepare a document called information memorandum. Information memorandum में वो सारा details लिखते हैं कि इसके पास कितना assets है, कितना liabilities है, कितना claims है, ये है वो है, जो भी relevant details किसी भी person को जानना जरूरी है for the purpose of I mean resolving this company, for the purpose of infusing money in this company. So वो सारा चीज करके I prepare information memorandum. I means for resolution profession. इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद जैसे पांच रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सिलेक्ट हुए, तो वो पांचों प्लान्स पे वोटिंग होता है. अभी तक मैंने जो भी बताया, आई विल ट्राई टू समराइज इट वंस अगेन, ताकि धीरे धीरे वापस से एक बार मतलब सब चीज रिकॉल हो जाए. तो क्या हुआ, सीआरपी एप्लीकेशन फाइल हुआ, एनसीएलटी ने एडमिट किया, एडमिट करती, मोरेटोरियम इम्पोज हो गया. मोरेटोरियम इम्पोज हो गया मतलब पीरियड ऑफ काम. मोरेटोरियम तब तक रहेगा जब तक द कंपनी इज इन दी स्टेट ऑफ सीआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जब तक चल रहा है तब तक मोरेटोरियम चालू रहेगा. आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट हुआ. इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होते ही पब्लिक नोटिस देता है फॉर इनवाइटिंग क्लेम्स एंड सेइंग दैट इस कंपनी का सीआरपी स्टार्ट हो गया. तो जिसका भी क्लेम्स है सब लोग अपना क्लेम्स मेरे को जमा कर दो. उस क्लेम्स के बेसिस पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म होता है. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में खाली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, और वो वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पार्टी नहीं है. अभी अगर ऐसा कोई सिनेरियो है कि सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी है, या कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, then in that case top 18 operational creditors and one representative of employee and one representative of workmen, they form part of the COC, committee of creditors. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपने पहली मीटिंग में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट करते हैं. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट पूरे सीओसी क्यों करती है, क्योंकि आईआरपी इज समवन हु वाज अपॉइंटेड बाय दैट पर्टिकुलर, आई मीन एप्लीकेंट हु मेड द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी. तो उसके बाद में क्या होता है, सो आरबी का अपॉइंटमेंट हुआ. आरबी प्रिपेयर्स द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब क्या, इस कॉर्पोरेट डेटर के पास क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, सबका एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करती है और इनविटेशन देती है फॉर गिविंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. अपना इंटरेस्ट दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड हो इस कंपनी का रिजॉल्व करने में. बहुत सारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आते हैं. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इवैल्यूएट करती है, अच्छा कौन कौन से जो एप्लीकेंट्स है वो एलिजिबल है. सो लॉ में ना एक लिस्ट बताया हुआ है कि कौन कौन से लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते. रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मतलब कौन, जो रेजोल्यूशन प्लान देते हैं, बाहर के लोग जो रेजोल्यूशन प्लान देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग दिस कंपनी विच इज अंडर द स्टेट ऑफ सीआरपी. कौन कौन से लोग, जैसे क्या बोलते हैं कि जिसने बहुत डिफॉल्ट कर रखा है, जो जेल में है, जो इनएलिजिबल है, राइट. अब जैसे नीरव मोदी टाइप्स पर्सन को तो हम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बना सकते ना. Therefore, list, there is a list. Section 29A to 29A of Insolvency and Bankruptcy Code provides a list.
This list, I think, is not there in our syllabus. Therefore, we can park it for the time being. So, but what is to be understood here is that I have given the invitation for expression of interest, and in the meantime, I'm preparing the information memorandum. Information memorandum मैं upfront नहीं दे सकती हूँ. First, I'll have to see whether जिन जिन ने अपना expression दिया है, जिस जिसने अपना expression of interest दिया है, वो पहले तो eligible है कि नहीं है resolution plan देने के लिए. वो eligible है, तब उसके बाद एक eligibility मतलब जो जो selected resolution applicants है ना, उनका एक list prepare होता है. नहीं तो मजे मजे में तो कोई भी दे दे, मैं भी दे दूं, कोई भी दे दे, right? But the person should be eligible to give the resolution plan. एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेम. और ऐसा करने के बाद में द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड, उनको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देते हैं एंड उसके बाद में दे सबमिट्स देयर रेजोल्यूशन प्लान. ठीक है. रेजोल्यूशन प्लान में क्या लिखा रहता है कि हम कितना पैसा इन्फ्यूज करेंगे एंड हाउ वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस कंपनी आउट ऑफ द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और कैसे कैसे क्रिएटर्स को कितना कितना पैसा देके वी विल सेटल एवरीथिंग. तो वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं. अब जैसे मैंने तुमको बहुत देर पहले बताया था कि आफ्टर इनिशिएशन ऑफ सीआरपी सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? सारा का सारा कंट्रोल आ जाता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में. तो डोंट यू थिंक इट इज ऑब्वियस कि जो रेजोल्यूशन प्लान, जैसे 5 रेजोल्यूशन प्लान आए, तो ये पांचों रेजोल्यूशन प्लान में से कौन सा प्लान सिलेक्ट होएगा, ये डिसाइड करने का राइट भी सीओसी हैज, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैज. ठीक है. सो आफ्टर द रेजोल्यूशन प्लान्स आर रिसीव्ड, resolution professionals evaluate whether these plans meet the criteria specified in the law. जो लॉ में कुछ क्राइटेरिया है कि रेजोल्यूशन प्लान में मिनिमम ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें अगर होती है तो जो सिलेक्टेड रेजोल्यूशन प्लान है इसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने प्लेस किया जाता है, जिसपे कमिटी वोटिंग करती है. कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के लिए 66% वोट्स इन फेवर चाहिए. अगर 66% वोट्स इन फेवर आ जाता है तो ये प्लान अप्रूव हो जाता है. ठीक है. नाउ दिस वोटिंग प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं कि से 2 रेजोल्यूशन प्लान्स आए हमारे पास. 2 रेजोल्यूशन प्लान है. रेजोल्यूशन प्लान नंबर ए, रेजोल्यूशन प्लान नंबर बी वर द सिलेक्टेड रेजोल्यूशन प्लान who meets the criteria provided in law. Therefore, these 2 resolution plans were put to vote before the COC. दोनों ही प्लान को, सो देयर कैन बी मेनी सिनेरियोस. पहले सिनेरियो नंबर 1 क्या हो सकता है कि प्लान नंबर ए को से 70% वोट मिला, प्लान नंबर बी को से 50% वोट मिला. जब हम लोग प्लान नंबर ए वाज पुट टू वोट, तब 70% वोट्स इन फेवर आया फॉर प्लान नंबर ए. अगेन व्हेन प्लान नंबर बी वाज पुट टू वोट, तब खाली 50% का अप्रूवल आया. तो 50% इज बिलो 66%. So as I mentioned some time back, for the purpose of approving a resolution plan, 66% votes in favor is required. So ये जो सेकंड वाला प्लान था, इसमें तो 66% आया नहीं, तो ये प्लान तो ऐसे रिजेक्ट हो गया. तो सिलेक्टेड रेजोल्यूशन प्लान कौन सा हुआ? प्लान नंबर ए. ठीक है. केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि प्लान ए प्लान बी दोनों को से 66% वोट मिल गया. प्लान ए को जब पुट टू वोट किया तब इसको 66 मिला, प्लान बी को वोट जब पुट टू वोट किया तो इसको भी 66 मिला. दोनों ही प्लान्स को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स मिला और दोनों ही प्लान्स को इक्वल वोट मिला. तब क्या होगा? इस केस में एक टाई ब्रेकर किया जाता है. टाई ब्रेकर में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि जब हम, अगर ऐसा एक सिनेरियो राइज होता है कि सारे रेजोल्यूशन प्लान्स को इक्वल इक्वल वोट मिल गया, तब उस केस में कौन सा प्लान अप्रूव होएगा आगे, उसको डिसाइड करने के लिए टाई ब्रेकर पहले से डिसाइडेड रहता है. इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस की कौन से केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे. केस नंबर 3, दोनों का दोनों रेजोल्यूशन प्लान को बिलो 66% वोट मिला. से प्लान नंबर ए को मिला 50% वोट, प्लान नंबर बी को मिला 60% वोट. तो इस केस में जिस प्लान को हायर वोट्स मिला वो वाला प्लान को हम वापस से एक बार पुट टू वोट करेंगे. अगर वापस से इफ यू आर पुटिंग इट टू वोट बिफोर द सीओसी, और इस केस में अगर 66% वोट्स मिल जाता है तो ये प्लान अप्रूव हो जाता है. ठीक है. यहां तक सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आफ्टर सीओसी अप्रूव्स अ रेजोल्यूशन प्लान, then the same is placed before NCLT, adjudicating authority. कि see, COC has approved this resolution plan. Please you also see. अगर NCLT को लगता है कि ये प्लान सही है, ये प्लान से ये कॉर्पोरेट डेटर का इंसॉल्वेंसी स्टेट से बाहर आने का बहुत अच्छा चांसेस है, और ये जो प्लान है इसमें लॉ में जो जो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है वो भी मीट किया, तो NCLT अप्रूव्स दिस रेजोल्यूशन प्लान और ये रेजोल्यूशन प्लान फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है.
और जैसे ही सीओसी ये रेजोल्यूशन आई मीन सॉरी जैसे ही एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करती है वैसे ही सीआरपी पीरियड खत्म हो जाता है। सीआरपी पीरियड खत्म हो गया मतलब जो मोरेटोरियम जो मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया था पीरियड ऑफ काम, जब कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता है, कोई भी कंटिन्यूइंग केस चालू नहीं रह सकता है, कोई भी कॉर्पोरेटर का एसेट उठा के नहीं ले जा सकता, तो ये सारा कुछ पर स्टे लग जाता है। ये जो स्टे लगा हुआ रहता है स्टे लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार क्विकली वापस से हम लोग समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। एक एप्लीकेशन फाइल हुआ, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। एडमिट किया तो सीआरपी स्टार्ट हो जाएगा, रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने से पहले 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा टू रिमूव द डिफेक्ट्स जिसके कारण ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। और ये जो एनसीएलटी को एडमिट करने का टाइम होता है ये 14 दिन का टाइम होता है। जैसे सीआरपी एप्लीकेशन एडमिट होता है वैसे ही मोरेटोरियम इम्पोज हो जाता है। मोरेटोरियम मतलब पीरियड ऑफ काम, और एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी का अपॉइंटमेंट होता है। आईआरपी पब्लिक अनाउंसमेंट करता है और न्यूज़पेपर बाय वे ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एंड पुटिंग ऑन वेबसाइट। उसके बेसिस पे क्लेम्स इनवाइट होते हैं। क्लेम्स इनवाइट करने का पर्पस क्या हुआ कि हम कमिटी ऑफ क्रेडिटर सीओसी का फॉर्मेशन कर सके, क्योंकि जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है वो सारा सीओसी के अप्रूवल के हिसाब से होता है। अभी सीओसी में कौन कौन रहता है? सीओसी में खाली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रहते हैं हु आर नॉट द रिलेटेड पार्टी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टी और इफ देयर आर नो फाइनेंशियल क्रेडिटर देन इन केस ऑफ टॉप 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स and one representative of employee and one representative of workman, ये 20 लोग they form part of the committee of creditors। लेकिन अगर 18 से कम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है तो जितने कम है वो उसके 13 14 15 जितने भी है वो सीओसी के पार्ट बन जाते हैं। सीओसी अपनी फर्स्ट मीटिंग में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट करता है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट पूरा सीओसी क्यों करता है? क्योंकि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाज अपॉइंटेड बेसिस द एप्लीकेशन जिसमें सारे के सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का से नहीं था। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट में सारे के सारे कमिटी मेंबर्स का से हो, इसलिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट किया जाता है विद द वोट्स ऑफ एटलीस्ट 66% इन फेवर। आफ्टर अपॉइंटमेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है कि सारे एसेट्स लाइबिलिटीज का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड द सेम टाइम गिव्स इनविटेशन फॉर गिविंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। बहुत सारे इंटरेस्ट आते हैं, फिर इंटरेस्ट आने के बाद इवेलुएट करना पड़ता है कि वेदर ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम रिजॉल्व करेंगे ये एलिजिबल तो है कि नहीं है पहले रेजोल्यूशन प्लान देने के लिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद जो जो सक्सेसफुल होते हैं यहाँ से वो लोग अपना अपना रेजोल्यूशन प्लान देते हैं। हाउ दे गिव द रेजोल्यूशन प्लान? तो जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया जाता है। बेसिस द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दे गिव द रेजोल्यूशन प्लान। ये जो रेजोल्यूशन प्लान होता है इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ लॉ देन इट इज प्लेस्ड बिफोर द सीओसी फॉर इट्स वोटिंग। सीओसी 66% वोट से रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करती है एंड आफ्टर सीओसी's अप्रूवल द सेम इज प्लेस्ड बिफोर एनसीएलटी फॉर इट्स अप्रूवल। After NCLT approves the plan, then CIRP stops and the moratorium also stops। और ये जो प्लान है इसके बेसिस पे अब कंपनी का रेजोल्यूशन होता है एंड वी कैन से दैट द कंपनी हैज कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ CIRP। ठीक है, और ये सारा का सारा जो चीज है ये 180 प्लस 90 एंड एट मोस्ट 330 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये अगर ये इतने टाइम में कंप्लीट नहीं होता है देन द कंपनी इज पुश्ड इनटू लिक्विडेशन। अभी आप सबके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा होगा। क्वेश्चंस कैसा कैसा कि मैम एक चीज तो समझ में आ गया कि हम लोग ये टाइमलाइन नहीं मीट करते तब लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन देयर कैन बी अदर सिनेरियोज एज वेल। अदर सिनेरियोज जैसे ये कंपनी का हालत इतना खराब था कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं आया, या हो सकता है जो प्लान आया वो प्लान लॉ का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था, या उसको सीओसी का रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिला, या हो सकता है एनसीएलटी ने अप्रूव नहीं किया। बहुत सारा सिनेरियोज हो सकता है। तो इन सिनेरियोज में क्या होगा? इन सिनेरियोज में भी कंपनी विल बी पुश्ड इनटू लिक्विडेशन। ठीक है, तो insolvency in bankruptcy court में there are two stages। First is the CIRP stage and second is the liquidation stage। CIRP stage 180 plus 90 plus 330 at max, 180 plus 90 and 330 at max, this is the first stage CIRP stage। CIRP stage में इंटेंशन होता है कि कंपनी को स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी से बाहर निकाले। अगर इस सीआरपी स्टेज में कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया, या जो रेजोल्यूशन प्लान आया वो लॉ का क्राइटेरिया मीट नहीं करता था, या जो रेजोल्यूशन प्लान लॉ का क्राइटेरिया मीट करता था बट उसको सीओसी ने अप्रूव ही नहीं किया, या सीओसी ने तो अप्रूव किया लेकिन एनसीएलटी डिड नॉट अप्रूव दिस थिंग, या ये जो 180 प्लस 90 या 330 डेज का जो टाइमलाइन है ये टाइमलाइन एक्सपायर हो गया,
इस केस में स्टेज नंबर 1 हो जाता है खत्म और स्टेज नंबर 2 हो जाता है स्टार्ट, विच इज द लिक्विडेशन स्टेट। ठीक है, सीआरपी स्टेज जिधर खत्म हुआ वहां पे लिक्विडेशन स्टेट स्टार्ट हो जाता है, अगर ये जो अभी मैंने 4-5 चीजें आपको बताई वो 4-5 चीजें नहीं होती है। लिक्विडेशन में इंटेंशन क्या होता है, कंपनी को बचाना नहीं है, कंपनी को धीरे 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 उसका सारा एसेट्स बेच के उसके लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके कंपनी को खत्म करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कम्स इनटू पिक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन विच आई एम सेइंग इज सेक्शन नंबर 53 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जहाँ पे वाटरफॉल मैकेनिज्म का बात हुआ है। सो एक बार यहाँ पे ना एक चीज समझते हैं, कंपनी इंसॉल्वेंसी में थी, मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा नहीं था, एज आई मेंशन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, कि सीआरआरपी का पर्पस क्या है, टू ब्रिंग द कंपनी आउट ऑफ द स्टेट वेयर द एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेट। मतलब बहुत ज्यादा डेट है लेकिन पैसा बहुत थोड़ा सा है। अगर थोड़ा सा पैसा और बहुत सारा डेट है तो पहले किसको दें बाद में किसको दें, इज अ क्वेश्चन, है ना? कि पहले हम अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दें, पहले अनसिक्योर्ड को दें, पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को दें या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दें, किसको दें, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? तो सेक्शन नंबर 53 here comes into picture. Section 53 of the Insolvency and Bankruptcy Code provides for the waterfall mechanism. Waterfall mechanism मतलब जैसे जैसे कंपनी का एसेट्स सेल ऑफ होता जाएगा वैसे वैसे पैसा देते जाएंगे। एक बार में तो सारा एसेट्स नहीं बिकेगा ना, धीरे 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 करके बिकेगा, तो जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे पे ऑफ करते जाएंगे। लेकिन पहले किसको दे बाद में किसको दे वो होगा सेक्शन 53 की हायरार्की के हिसाब से। ठीक है, आई होप यहां तक एवरीवन इज विद मी। But in most of the cases, it is observed that, but in most of the cases, it is observed कि जो हायरार्की होता है इसके सिर्फ जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना सिर्फ उनको ही पेमेंट होता है, नीचे तक बचता ही नहीं है कुछ। ठीक है, बिकॉज द फंड्स आर वेरी लिमिटेड। तो जो ऊपर के हायरार्की वाले होते हैं उन्हीं को जनरली दे गेट द मनी, एंड द लोअर हायरार्की पीपल दे डू नॉट गेट द मनी एट ऑल। एंड इवन एट दिस पॉइंट द हेयरकट्स आर रियली शार्प। हेयरकट्स मतलब 100 करोड़ के लोन के बदले में 10 करोड़ मिला, 8 करोड़ मिला, तो ये जो बचा हुआ पैसा है तो मेरा लॉस है ना, दिस इज कॉल्ड द हेयर कट। ठीक है, so this is about the section 53. Section 53 provides the hierarchy, जैसे सबसे पहले CRP cost if any outstanding and the liquidation costs are paid in full. Next comes the secured creditors who have relinquished the security interest. So I'll explain what happens is, जब तक CRP चलता है तब तक क्रेडिटर्स के बीच में दो बाइफर्केशन होता है, which is between financial creditor and operational creditor. लेकिन जहां लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया वहां पे देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट होता है, वहां होता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने अपने उधारी के बदले कुछ सिक्योरिटी ले रखा है, कुछ गिरवी ले रखा है। अनसिक्योर्ड मतलब जिनका कुछ गिरवी नहीं है। जैसे बैंक जब भी लोन देती है तो बैंक तो बदले में लेती है ना सिक्योरिटी, तो बैंक क्या बन जाती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो जैसे ही लिक्विडेशन स्टार्ट होता है ना वैसे ही ये जो सिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं इनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो ये बाहर जाके एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले, या ये पैसा कॉमन पूल में डाल दे। कॉमन पूल में डाल दे मतलब ये हमारा जो सिक्योरिटी था वो आप रख लीजिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप जैसे जैसे बाकी एसेट्स बेचेंगे ये भी बेच दीजिएगा, जो पैसा आएगा वो मेरे को दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर द लिक्विडेशन स्टार्ट्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ड्यूटी भी वहीं तक रहता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ड्यूटी भी वहीं खत्म हो जाता है। तो लिक्विडेशन के टाइम पे कौन अपॉइंट होता है, लिक्विडेशन के टाइम पे अपॉइंट होता है लिक्विडेटर। सबसे पहले इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर इसके बाद में लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है तो लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है, फिर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ड्यूटी सीज टू एग्जिस्ट एंड लिक्विडेटर का ड्यूटी कंटिन्यूस। तो इनको बताना रहता है सिक्योर क्रेडिटर्स को कि वो सिक्योरिटी खुद बेच के पैसा रियलाइज करेंगे या कॉमन पूल में दे देंगे। अगर वो खुद बेच कर रियलाइज कर रहे हैं तब उनको लोअर प्रायोरिटी दे दिया जाता है, और अगर वो रेलिंक्विश कर देते हैं एंड दे कम इन द हायरार्की तो उनको पहले पैसा दिया जाता है। तो हायरार्की गोज लाइक दिस, सबसे पहले सीआरपी कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट पेड इन फुल। नेक्स्ट इज सिक्योर क्रेडिटर्स हु हैव रेलिंक्विश्ड। रेलिंक्विश्ड मतलब उन्होंने क्या किया, एसेट्स लाके लिक्विडेशन एस्टेट में दे दिया और लिक्विडेटर को बोला जहां बाकी एसेट्स बेचोगे ये भी बेच देना और जो पैसा है वो मेरे को दे देना। इन्हीं के साथ एट पार रखा जाता है 24 मंथ्स का वर्कमैन ड्यूज।
ठीक है। सो सिंस वर्कमैन कम्स फ्रॉम अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो जो उनका ड्यूज है उसको भी हायर प्रायोरिटी में पे ऑफ किया जाता है। इसके बाद में अगर इन दोनों को सिमिलर लेवल पे रखा गया, मतलब क्या हुआ कि अगर से फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन का ड्यूज 30 रुपीज का था और सिक्योर क्रेडिटर्स का ड्यूज 70 रुपीज का था, ठीक है, 30 रुपीज एंड 70 रुपीज का ड्यूज था। लिक्विडेशन एस्टेट को बेच बेच के हम लोग 10 रुपया रियलाइज, ठीक है, तो 10 में से 3 रुपया मिल जाएगा वर्कमैन को और 7 रुपीज मिल जाएगा सिक्योर क्रेडिटर्स को हैव रिलिंक्विश्ड। तो जितना भी इनका ड्यूज होगा उसको उस प्रपोर्शन पे जो रियलाइजेशन होगा वो पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। जब तक ये सेकेंड लेवल क्लियर नहीं हो जाता हम लोग थर्ड लेवल वाले क्रिएटर्स को पैसे नहीं दे सकते। तो अभी क्वेश्चन आता है कि थर्ड लेवल में कौन आता है, तो थर्ड लेवल में एम्प्लॉयज का ड्यूज आता है, एम्प्लॉयज अदर देन वर्कमैन। लेकिन एम्प्लॉयज अदर देन वर्कमैन इज ओनली फॉर 12 मंथ्स, जहां वर्कमैन को 24 मंथ्स प्रिसीडिंग द लिक्विडेशन का मनी मिल रहा है, वहां एम्प्लॉयज को 12 मंथ्स, सो 12 मंथ्स प्रिसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट का जो ड्यूज रहता है वो that is paid off to the employees. Next, after employees dues for previous 12 months before the liquidation commencement date, next comes the unsecured creditors. ठीक है, सबसे पहले क्या था, CRP cost, liquidation cost paid in full. Next is workman dues for 24 months preceding the liquidation commencement date and secured creditors who have relinquished their assets in the common pool. Third is the employees dues towards 12 months preceding the liquidation commencement date. उसके बाद में आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब कौन, जिनका कोई सिक्योरिटी नहीं था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद में आता है 24 months ड्यूज फॉर एनी स्टैट्यूटरी आउटस्टैंडिंग पेमेंट। स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई ड्यूज था पिछले 24 महीने का, तो वो इस वाले हायरार्की में आएगा अलोंग विद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हु रियलाइज देयर एसेट्स। सिक्योर क्रेडिटर्स रियलाइज देयर एसेट्स, लेकिन अभी क्वेश्चन आ सकता है मैम उन्होंने ऑलरेडी अगर रियलाइज कर दिया तो उनको क्या पे करना है। तो समझो उनका 100 रुपीज का ड्यूज था, एसेट को बेच के मानो 80 रुपए आया खाली, तो ये जो 20 रुपीज बच गया तो ये तो वो रियलाइज करेंगे ना, तो ये रियलाइज करने के लिए वो नीचे वाले हायरार्की में लाइन लगाए, ठीक है। एक बार शुरू से मैं वापस बता दूं, सीआरपी कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट पेड इन फुल। सेकंड, वर्कमैन ड्यूज फॉर प्रीवियस 24 मंथ्स and secured creditors who relinquish their assets in the common pool. Third, employees dues for preceding 12 months preceding the liquidation commencement date. Fourth is unsecured creditors. Fifth is secured creditors who realize their assets, जो बैलेंस पैसा बचा उसके लिए, and 24 months statutory dues, मतलब सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई ड्यूज है तो वो, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हु हैव रियलाइज्ड देयर एसेट्स, ये दोनों फिफ्थ नंबर हायरार्की में आते हैं। सिक्स्थ में आता है एनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज, मतलब अभी तक जो बताया उसके अलावा कोई भी ड्यूज है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोई भी ड्यूज क्या हो सकता है, अभी वर्कमैन का जो हम लोग आउटस्टैंडिंग है हम लोग 24 मंथ्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ लो वर्कमैन का 30 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग था, तो 24 महीने का था वो तो हायर प्रायोरिटी में मिल गया, जो बैलेंस 6 महीने का है वो 6 नंबर प्रायोरिटी एज एनी अदर डेट्स में मिल जाएगा, ठीक है। सेवेंथ इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एट इज द इक्विटी शेयरहोल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। So we'll revise the hierarchy once again. First is CRP cost, liquidation cost paid in full. Next is 24 months dues towards the wages and secured creditors or relinquish the assets in the common pool. Third is employees dues for 12 months preceding the liquidation commencement date. Fourth is unsecured creditors. Fifth is statutory dues for 24 months preceding the liquidation commencement date and balance amount of the secured creditors who realize their assets, जिन्होंने assets बेच के पैसा realize किया था, जो उनका बच गया था पैसा, उसके लिए they'll come in the fifth hierarchy. Sixth is any other debts, इन सब के अलावा और भी कोई debt है तो वो sixth में आएगा. सेवेंथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एट इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, लिक्विडेटर जब एसेट्स को सेल ऑफ कर रहा है तो सेल ऑफ करने के लिए दिस इज द हायरार्की अंडर सेक्शन 53 pursuant to which the creditors are, I mean the stakeholders are paid off. And one important discussion, as I mentioned थोड़ी देर पहले भी, कि in case of CIRP the bifurcation is between operational creditors, financial creditors.
लेकिन लिक्विडेशन में देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑपरेशनल फाइनेंशियल. व्हाट इज देयर इज सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. जैसे ही सारे एसेट्स बिक जाते हैं, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो जाती है, या जितना भी पैसा आया उसके बेसिस पे जितनी लाइबिलिटीज पे ऑफ होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जनरली इट इज सीन दैट जो नीचे वाले लेयर्स होते हैं, मतलब प्रेफरेंस होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स, उनको हार्डली कुछ पैसा मिलता है. हार्डली कुछ पैसा मिलता है मतलब समझो तुम आउटस्टैंडिंग ड्यूज इतने ज्यादा है, जब तक मैं लेयर नंबर 2 या लेयर नंबर 3 कंप्लीट नहीं करती, मैं नीचे आ ही नहीं सकती. और क्योंकि कंपनी वाज इन द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, देयर वाज मनी, देयरफॉर मनी वाजंट सफिशिएंट टू पे देम ऑफ. तो नीचे हायरार्की तक पैसे आते नहीं, दे एक्चुअली काइंड ऑफ गेट अ वेरी शार्पर हेयर कट्स. तो जैसे ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जितने को पे ऑफ हुआ हुआ नहीं हुआ, नीचे वालों को फिर हेयर कट्स का सामना करना पड़ता है. और उसके बाद एक company is the dissolution application of the company is filed and the company is dissolved. ठीक है. So this is the proper, I mean, a broad background of how things happen, what is CIRP, what is liquidation, and what happens at the end. In the next lecture we'll dwell in deep. Abhi tak, because my intention was to make you people aware of the provisions of the insolvency and bankruptcy code. Going forward, we'll understand in deep as to what happens, how happens, and what are the exact things that takes place. Okay, but before we end, let's summarize everything that we read today. सबसे पहले, a default has occurred. कोई भी सीआरपी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सबसे पहला चीज है डिफॉल्ट ऑफ 1 crore और अबव. एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर इन सेक्शन नंबर 7 और ऑपरेशनल क्रेडिटर इन सेक्शन नंबर 9 और अ कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ इन सेक्शन नंबर 10. फाइनेंशियल क्रेडिटर डायरेक्टली एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले डिमांड नोटिस सर्व करना पड़ता है. 10 दिन का टाइम देना पड़ता है कॉर्पोरेट डेटर को टू ईदर पे ऑफ और टू शो दैट द मनी इज नॉट पेड बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट. अगर 10 दिन में ये दोनों चीजें नहीं होता तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सीआरपी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या कॉर्पोरेटर इटसेल्फ कैन आल्सो फाइल द सीआरपी एप्लीकेशन. सीआरपी एप्लीकेशन 14 दिन में एनसीएलटी इधर एडमिट्स और डिसमिसेस. डिसमिस करने के लिए उनको 7 दिन का टाइम देना पड़ता है कि आपका जो जो डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, जिसके कारण आपका एप्लीकेशन डिसमिस किया जा रहा है. If the same is rectified within same 7 days, the application is admitted. एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद मोरेटोरियम इज इम्पोज्ड, और मोरेटोरियम तब तक रहता है जब तक सीआरपी प्रोसेस रहता है. उसके बाद में क्या होता है? एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी इज अपॉइंटेड. आईआरपी डू द पब्लिक अनाउंसमेंट इन बाय वे ऑफ म्युनिसिपल एडवर्टाइजमेंट एंड पुटिंग अप ऑन द नोटिस ऑन द वेबसाइट. उसके बाद में क्लेम्स इनवाइट होते हैं, सीओसी फॉर्म होता है, सीओसी आरपी को अपॉइंट करता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज अपॉइंटेड फ्रॉम द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स. सिलेक्टेड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स का रेजोल्यूशन प्लान मंगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. This plans, whichever plans meets the criteria specified in law is put to vote before COC. COC 66% से प्लान को अप्रूव करती है. COC का अप्रूव किया हुआ प्लान एनसीएलटी के सामने प्लेस किया जाता है. एनसीएलटी जिस प्लान को अप्रूव करती है वो प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है, और इसी के साथ सीआरपी खत्म हो जाता है. सीआरपी खत्म मतलब मोरेटोरियम भी खत्म. लेकिन अगर सीआरपी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब ये जो टाइमलाइन था 180 + 19 एट मोस्ट 330, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. अगर ये टाइमलाइन एग्जॉस्ट हो जाता है या कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया, और कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, इन दैट केस लिक्विडेशन स्टार्ट्स. लिक्विडेशन स्टार्ट होते ही लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है. लिक्विडेटर क्या करते हैं? सारे एसेट्स को सेल ऑफ करते हैं. सेल ऑफ करने के बाद मनी रियलाइज करते हैं. मनी रियलाइज करके पेमेंट करते हैं. पेमेंट कैसे करते हैं? बेसिस द हायरार्की प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 53. After the payment is made, the company is the dissolution application of the company is pushed. Dissolution application मतलब अब company पूरी तरीके से खत्म हो गई है. So this is all about the basics of insolvency and bankruptcy code. In the next lecture, we will try to understand more concepts. We'll try to understand about the valuation concepts under insolvency laws. And going forward, I'll also be explaining the provisions of SAR PC Act as well. Thank you, everyone.